Now we explain the what is the difference between sympathetic and parasympathetic structurally. What is the difference between sympathetic and parasympathetic, you know, in the form of the division of their differentiation point, but sometime we have to understand the real structural form, then we have to understand very clearly. So we try to explain what is the structural form of sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Sympathetic is excited condition and they have to normalize body or organs in the excited condition, and parasympathetic in very happy or resting condition, and in that time this type of parasympathetic form are activated. What is their formation? What is their structural point? Some terms used in that type of diagrammatic point, and the name is ganglion. This term we used many times. Why it called the ganglion? Because group of neuron body in peripheral nervous system is called ganglion. Sympathetic and parasympathetic nervous system is the part of peripheral nervous system, and these are combinedly known as autonomic nervous system. This autonomic nervous system is really the part of peripheral nervous system, and in this reason many small nerve fiber also arises in spinal or cranial region. Then this group of neuron body is called as ganglion and arises from peripheral nervous system. In this diagram, this is the transverse section of spinal cord. Inner region is gray matter, outer region is white matter, and neurocells present in that region. And in this region, any type of impulse have to enter and they have to form the synapses. After that, they have to out and they combine in a point. And now, in this region, grow some ganglion. Sympathetic and parasympathetic nervous system form with the help of preganglionic nerve fiber or preganglionic neuron and postganglionic neuron. Two type of ganglionic neuron have to present in presympathetic and postsympathetic nervous system. So at first, in this region, the preganglionic neurons are arise. These are the preganglionic neuron, and they divide into many branches, and these branches have to open in an ganglionic region, and that ganglionic region is called autonomic ganglion. When this autonomic ganglion present in a sequence manner in sympathetic nervous system, then the sequence form of autonomic ganglion is called sympathetic trunk. This trunk we explain in the briefly diagrammatic part of sympathetic nervous system. Now, in this region, they have to form synapses part, and after that grow another ganglion, and this ganglion is known as postsynaptic, and they have to form many branches, and these branches enter into different organs in our body. This part is known as synapses part because synapses happen in this region. Presynaptic primitive part is it's not the synaptic, it's the ganglionic, preganglionic neuron, or you say that preganglionic nerve fiber, and this is called postganglionic neuron. That is two type of neuron and combinedly form the sympathetic structure. Preganglionic neuron form with the help of myelinated membrane or myelinated layer. So, preganglionic nerve fiber or neuron present myelin, so it called myelinated, and postganglionic nerve fiber is non-myelinated,
myelinated, that means myelin layer absent. So here myelin layer absent and here myelin layer present. In this diagram, when you observe, then you found that the length of preganglionic neuron is very short in comparison to postganglionic neuron. The length of postganglionic neuron is very large. So the length is small and their length is large or long. It's very long and very large, and it very small, or you say that very short. This preganglionic neuron in by nature is cholinergic. It's most important point, cholinergic. What is the meaning of cholinergic? When any type of the nerve fiber or neurons or inner part of the cyton in the neuron region form with the help of fill up with the help of acetylcholine, then the transformation in the synapses region, acetylcholine chemical have to transfer, then this type of structural point is known as cholinergic. So it filled with acetylcholine, and this postganglionic neuron is by nature adrenergic. Sir, why it adrenergic? Because it filled with noradrenaline. तो बच्चों, इस प्रकार से आप देख रहे हो कि प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की जो लेंथ है वो कम है, पोस्ट गैंग्लियोनिक की लेंथ अधिक है, इसमें माइलिन के लेयर हैं, इसमें माइलिन के लेयर एब्सेंट हैं, इसमें जो लेंथ है इसके कंपैरिजन में कम है, इसका लेंथ इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, और ये कॉलिनर्जिक होगा और ये एड्रिनर्जिक होगा, यानी ये दोनों अलग अलग नेचर के होते हैं। ये होते हैं एसिटाइलकोलिन से भरे हुए और ये होते हैं नॉरएड्रेनालिन से भरे हुए। तो केमिकल नेचर के फॉर्म में ये जो दो पॉइंट्स है, इससे कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं और आने वाले समय में भी क्वेश्चन बनेंगे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? कॉलिनर्जिक, बिकॉज एसिटाइलकोलिन इज फिल अप, एंड दिस इज एड्रिनर्जिक नेचर पोस्ट गैंग्लियोनिक बिकॉज नॉरएड्रेनालिन फिल अप। अब अगर हम बात करते हैं तो इसका फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें माइलिन लेयर तो है, ये तो बात सही है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें जो रेमस कम्युनिकेंस होते हैं जो नर्व के रूप में आपने सिनेप्स के रीजन में देखे हैं उसके भी पार्टिसिपेशन होते हैं, और रेमस कम्युनिकेंस जो होते हैं ये वाइट रेमस कम्युनिकेंस से बने होते हैं। तो फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ वाइट ramus communicans. In general, white ramus communicans participate to formation of the preganglionic neuron, and preganglionic neuron arise in the region of peripheral region, or you say that spinal nerve region, or you say that the gray matter region, and this preganglionic neuron form the synapses in the autonomic ganglionic region, and after that synapses part have to arise into another neuron, ganglionic part, that name is post ganglionic neuron, and post ganglionic neuron enter into different organs in our body, and it formation, अगर मैं इसकी formation की बात करता हूँ तो formation with the help of gray ramus communicans. Gray ramus communicans participate to formation of post ganglionic neuron, और इसमें प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ये इसके इन जनरल होते हैं। और हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं उसके कौन कौन से एरिया में कौन कौन से कनेक्शन होते हैं सिंपैथिक नर्वस सिस्टम का, इसका एक वास्ट डायग्राम्स बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये सारे पॉइंट दिखा दूंगा। केवल एक जगह पे
एक एक्सेप्शंस हैं, वो आप वहाँ भी देखोगे। पहले यहाँ समझ लो कि एक इसमें एक्सेप्शंस है। कौन सा एक्सेप्शन सर? स्वेट ग्लैंड। इंसानों के बॉडी में जो स्वेट ग्लैंड है इसमें पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को फॉर्म कर रहे हैं, ये पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन बना होगा। पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन फॉर्म विद द हेल्प ऑफ form with the help of acetylcholine, form with the help of acetylcholine. So it is cholinergic, cholinergic। देखो केवल स्वेट ग्लैंड में जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होगा वो कॉलिनर्जिक होगा। इसका मतलब इसमें एसिटाइलकोलिन भरा हुआ है, इससे बना हुआ है, जो भी बोल लो। जबकि बाकी सभी में पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एड्रीनर्जिक होगा। अदर ऑर्गन द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन इज एड्रीनर्जिक। एक्सेप्शंस में ह्यूमन में स्वेट ग्लैंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं उसके फॉर्मेशन में, इसके सप्लाई में सपोर्ट करते हैं, वो कॉलिनर्जिक नेचर का होगा और ये एसिटाइलकोलिन से भरा होगा। तो कॉलिनर्जिक नेचर का अगर पूछा जाए कि सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में कौन होगा, तो कॉलिनर्जिक नेचर का होगा प्री, और एड्रीनर्जिक नेचर का होगा कौन, तो होगा पोस्ट गैंग्लियोनिक। लेकिन एक अपवाद है कि पोस्ट गैंग्लियोनिक भी कॉलिनर्जिक हो सकता है स्वेट ग्लैंड में, जो सिंपैथिक न्यूरॉन सिस्टम के पार्ट के रूप में होने के बाद भी इसमें नेचर कॉलिनर्जिक होगा। ये डिफरेंस है। तो क्या क्या बात बताया समझ लो। ग्रुप ऑफ न्यूरॉन बॉडी इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड गैंग्लियन, और ये सारे गैंग्लियंस बन रहे हैं। These are formed with the help of pre-ganglionic and post-ganglionic neuron, और you say that pre-ganglionic nerve fiber also, ये भी कह सकते हो। Pre-ganglionic nerve fiber arises in this region और spinal cord region और spinal region, और they have to enter into autonomic ganglionic part and synapse form in that region and arises the post-ganglionic neuron. The length of post-ganglionic neuron is maximum in comparison to pre-ganglionic neuron. Pre-ganglionic neuron by nature is cholinergic and it by nature is adrenergic. White cholinergic because acetylcholine fill up, white adrenergic because noradrenaline fill up, and it form with the help of white ramus communicans and it form with the help of grey ramus communicans, and this type of differences present. Only one exception, sweat gland, and these are the acetylcholine fill up, so it's cholinergic in nature. तो ये था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो स्ट्रक्चर होते हैं, सिंगल गैंग्लियन, और इसके सिंगल गैंग्लियन के पार्ट सिनेप्स बनाएंगे, फिर नेक्स्ट गैंग्लियन से ऐड होंगे, फिर ऑर्गन में जाएंगे। लेकिन जहाँ भी जाएंगे इसका वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी ये कब एक्साइटेड होते हैं, तो जब आप एक्साइटेड कंडीशन में होते हो तब ये एक्साइटेड होते हैं। यानी एक्साइटेड कंडीशन या क्रिटिकल कंडीशन में ये आपके एक्टिवेट होंगे, और या इमरजेंसी कंडीशन में ये आपका एक्टिवेट होगा। तो इसका एक्टिवेशन होता है इस तरह से कि आप जो होता है क्रिटिकल कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में अपने आप को मेंटेन कर सको। आपको मैंने डिफरेंस सारे बता दिए थे कि सिंपैथेटिक में कब कौन कैसे एक्साइट होगा, और ये जो होते हैं मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे ऑर्गन में ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, आपके नॉर्मल जो एक्टिविटी होती है बॉडी की उसको बढ़ाते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा करके एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, और ये एनर्जी यूज़ करने वाला होता है, एनर्जी को यूज़ करके कंज्यूम करके आपके बॉडी के जो एक्टिविटी होती है उसको बहुत फास्ट कर देते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी जो होते हैं इसमें पार्टिसिपेशन होगा, और डिफरेंट ऑर्गन में, अलग अलग ऑर्गन में ये जाएगा गैंग्लियोनिक के फॉर्म में और आपके बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करेगा। तो ये था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के पॉइंट। अब मैं बात करता हूँ पैरासिम्पैथेटिक। नाउ वी एक्सप्लेन द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यू नो दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सेम लाइक आउटर रीजन व्हाइट मैटर, इनर इज ग्रे मैटर, न्यूरोसिल प्रेजेंट, सेम लाइक स्ट्रक्चर. But you remember that in this region, the sympathetic nervous system, only spinal nerve have to participate in different region of the spinal nerve region. The ganglion have to arise. But in the parasympathetic neurons or nervous system, cranial nerve also participate. But we diagrammatically explain
the spinal cord region, and when the full diagram we explain, then the cranial region also show. This region nerve have to enter and form the synapse, and after that this have to combine, and they have formed the ganglion, and this ganglion is known as preganglionic nerve fiber, and this is the autonomic ganglion, same like, and synapses form in this region, and after that when many synapses point have to form, and then here arise other ganglion, that is post ganglionic neuron, and they have to form many branches and enter into different organs in our body. Slight difference in sympathetic and parasympathetic. In parasympathetic, this pre-ganglionic neuron is longer in comparison to post-ganglionic neuron. Myelin layer same present in this slip point, and this myelin layer present in preganglionic neuron, myelinated, and myelin layer absent in postganglionic neuron, so it is non-myelinated. So it is myelinated and it is non-myelinated. If you explain the length, so it is longer in comparison to post-myelinated, length is short or small in comparison to preganglionic neuron. But you know, in the sympathetic nervous system, the preganglionic neuron is small and postganglionic neuron is long, but in parasympathetic nervous system, preganglionic neuron is long and postganglionic neuron is short. By nature, it is cholinergic, same like sympathetic, because it filled with acetylcholine, so it is cholinergic, and postganglionic neuron also cholinergic. That means in parasympathetic nervous system, both the ganglion, preganglion and postganglion, both are cholinergic. It also cholinergic, you know, filled with acetylcholine, Its formation, if we say, then we explain, it formed with the help of white ramus communicans, and it formed with the help of gray ramus communicans.
Now we explain briefly. This transverse section of spinal cord, the neurons have to combine, and these neurons generally connected to spinal nerve, or you also the cranial nerve, both the region in parasympathetic region, but in the sympathetic region only the spinal region they have to connect, and this region have to grow. Then this part is called preganglionic neuron, and they have to form the synapse, and synapse in the point of autonomic ganglionic region, and arises a short postganglionic neuron, and this preganglionic neuron in this point is longer and myelinated, and this is short and small and non-myelinated. This is cholinergic, this also the cholinergic, and it formed with the help of 5 ramus communicans, de ramus communicans, same like the sympathetic form, but some difference also present. And you know, this parasympathetic system activate in resting condition, or pleasant condition or calmness. Etc. That means when you have to pleasant or happy or very resting condition normalized, in that time this parasympathetic nervous system have to activate, and all the function of sympathetic nervous system they have to deactivate. That means these sympathetic and parasympathetic functions are antagonistic, and they control our body system, organ system according to our activity or according to brain condition. So this system is not the part of other form, it is directly connected to the central nervous system, peripheral nervous system, but really it is the part of peripheral nervous system, and this system is in general connect to different part of in our body. When we explain the brief diagram, then you observe what is the sympathetic and parasympathetic ganglions and what they arises into which organs. So this structure we explain in the next topic. Students, now we explain the sympathetic nervous system. अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये ब्रीफली स्ट्रक्चर्स हैं, और इसे आप अगर ध्यान से समझो तो आपको ये समझ में भी आएगा और आपको याद भी हो जाएगा. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें से जो भी पॉइंट्स मैं बताना चाहता हूँ ध्यान से समझें. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो ओरिजिन है वो T1 से लेकर L2 या L3 तक होगा. इसका मतलब आप जानते हो कि ये वर्टिब्रा रीजन है, एंड दिस रीजन इज सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कॉकेक्स. लेकिन इसमें जो स्पाइनल नर्व होते हैं उस स्पाइनल नर्व से ये जो गैंग्लियंस होते हैं, प्री गैंग्लियन और पोस्ट गैंग्लियन, वो ओरिजिन करके आगे की ओर जाते हैं और फिर ऑर्गन्स के अंदर एंटर करते हैं. तो इसमें जो पॉइंट्स मैं आपको बताया उसको सबसे पहले ध्यान रखिए कि जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम होते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड में जो रीजन है थोरेसिक 1 वहाँ से ओरिजिन होगा, और ये लंबर के 2 या लंबर के 3 तक जा सकता है. इसको मैंने पॉइंट से इंडिकेट किया है, दैट मीन्स T1 से ओरिजिन हो रहा है और ये L2 या L3 तक जा सकता है, लंबर 2 या लंबर 3 तक जा सकता है. और ये थोड़े से दूर पे ये मैंने बनाया है, इसका नाम है सिंपैथेटिक ट्रंक, जो ऑटोनोमिक न्यूरॉन्स के रूप में आपने लिखा था, तो इसका नाम है सिंपैथेटिक ट्रंक. इट इज सिंपैथेटिक ट्रंक, और ये दोनों साइड में होगा. सिंपैथेटिक ट्रंक लेफ्ट साइड, राइट साइड में भी होगा, लेफ्ट साइड में होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा, दोनों साइड में. मैं एक साइड दिखा रहा हूँ, आपको समझना है. फिर ये ऐसा ही उस साइड में भी होगा, यानी ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर इस साइड में भी जाएगा और इस साइड में भी जाएगा, दोनों साइड में, बोथ द साइड. अब देखो T1 जो है इस रीजन से एक प्री
गैंग्लियोनिक नर्व अराइज होकर यहाँ आते हैं, और सेकंड नंबर T2 से अराइज होकर यहाँ आते हैं, और थर्ड नंबर से अराइज होकर यहाँ आते हैं। ये जो नर्व होता है इस साइड जो भी मैं नाम लिख रहा हूँ, इसका नाम है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। और ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो होते हैं ये बाद में पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के साथ इस एरिया से सिनेप्स बनाते हैं। लेकिन होता क्या है कि इसके ऊपर अपर रीजन पे यहाँ पर जो सर्वाइकल एरिया है यहाँ भी सिंपैथेटिक ट्रंक का रीजन पाए जाते हैं। तो इसमें ये जो सबसे ऊपर होता है इसका नाम होता है सुपेरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। इसके सेकंड नंबर पे जो है इसका नाम है मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन, और सबसे नीचे जो देख रहे हो इसका नाम है इन्फेरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। तो मैं नाम लिख देता हूँ, याद रहेगा, SCG सुपेरियर, क्योंकि ये ऊपर होता है सुपेरियर, और ये सर्वाइकल रीजन होता है, और इस रीजन पे पाए जाते हैं ये ट्रंक सिंपैथेटिक और गैंग्लिया के फॉर्म में होते हैं, इसलिए इसका नाम है सुपेरियर सर्वाइकल गैंग्लिया या गैंग्लियन। और दूसरा होता है मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन, और तीसरा होता है इन्फेरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, क्योंकि ये नीचे का होता है इसलिए इन्फेरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। तो ये नाम दिया गया है और इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पर लिखा है, यानी 3 गैंग्लियंस इसके अंदर है। अब क्या होता है कि ये जो यहाँ से प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स अराइज हो रहे हैं, क्योंकि ये जो भी मैं यहाँ लिखा रहा हूँ ये सब के सब, इसकी जो लेंथ है ये सब के सब प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है। जो मैंने अभी शॉर्ट फॉर्म में डायग्राम बताया था उसका वास्ट फॉर्म है और ये आपको समझना होगा। और यहाँ से ये न्यूरॉन्स अराइज होते हैं और ये ऊपर तक जाते हैं इनके इन्फेरियर मिडिल से होते हुए, यहाँ से भी ये अराइज होते हैं और ये अराइज होकर के ये भी इसके साथ मिल जाते हैं और ये भी ऊपर तक जाते हैं, यानी एक दूसरे के साथ मिला हुआ है। फिर यहाँ से अराइज होते हैं और ये भी इसके साथ मिल जाते हैं और ये भी ऊपर तक जाते हैं। इस प्रकार से ये जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड थोरेसिक रीजन से निकलने वाले जो थोरेसिक नर्व यहाँ कह सकते हो वो अराइज हो रहे हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के रूप में, और ये इन 3 रीजन पे जा रहे हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट्स, यहाँ एक पॉइंट्स, यहाँ एक पॉइंट्स और यहाँ एक पॉइंट, इसके एक लोअर पॉइंट पे, एक मिडिल पॉइंट पे, एक अपर पॉइंट पर, एक टॉप लेवल पे एक अलग अलग प्रकार के पॉइंट बन रहे हैं और यहाँ से सिनेप्स होंगे। जब ये सिनेप्स फॉर्म करेंगे तो ये सिनेप्स फॉर्म करने के बाद यहाँ से एक नर्व आगे की ओर निकलेगा और ये सिनेप्स बनने के बाद जब आगे की ओर जा रहा है ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है। और जब ये आगे जाएगा तो यहाँ पर एक ब्लड वेसल्स है, उस ब्लड वेसल से ये यहाँ पर अरेंज होगा, अटैच होगा, और इस ब्लड वेसल्स का नाम है कैरोटिड आर्टरी एंड प्लेक्सस इसका नाम है। और ये यहाँ पर प्लेक्सस के फॉर्म में घूमने के बाद इसके अंदर ही अंदर इसके इस तरह से राउंड फॉर्म में बाद फिर ये आगे की ओर मूव करेगा और जाने के बाद ये हमारे फेशियल रीजन पे एंटर करेगा। फेशियल रीजन पे किस किस जगह पे एंटर करेगा, तो मेनली ये कई ब्रांच में डिवाइड होगा और सबसे पहली बार ये जाएगा आई में, यानी आई रीजन पे। और आप जानते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में आई को डायलेट करके फार विजन को देखने में सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये आई रीजन पे जो फंक्शंस में एक बार एक फॉर्म में लिखाया था वो सभी पॉइंट अब यहाँ पर काम आएंगे। सिंपैथेटिक वाले सारे सिंपैथेटिक में आ जाएंगे, पैरासिम्पैथेटिक वाले पैरासिम्पैथेटिक में चले जाएंगे, तो आई रीजन पे जाएंगे। आई रीजन के बाद इसमें से जो आई का सिलियरी मसल्स होता है, सिलियरी मसल्स इस रीजन पे ये एंटर करेंगे और इसके अलावा ये हमारे फेशियल रीजन पे भी जाएंगे और फेशियल रीजन में जो चिक है, जो मैंडिबुलर पार्ट है, इसके अंदर ये एंटर करेगा।
इसके बाद ये फेशियल रीजन में जब एंटर करेगा तो फेशियल रीजन में एंटर करने के बाद ये जो पार्ट है ये स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर चले जाएंगे। आपके पास 3 पेयर स्लाइवरी ग्लैंड है, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर, लिंगुअल एंड पैरोटिड। तो ये जो होते हैं फिर ये डिवाइड होगा और ये ब्रांच में डिवाइड होकर के आपके किस किस ऑर्गन में जाएंगे। तो देखो ये जो इधर आ रहा है पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व, ये कई सारे ब्रांच में इंड वाले पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं और ये जाएंगे आपके स्लाइवरी ग्लैंड में। सिंपल बात करते हैं तो स्लाइवरी ग्लैंड्स में एंटर करेंगे। सर कौन कौन से स्लाइवरी ग्लैंड्स है? तो हमारे पास स्लाइवरी ग्लैंड्स जो है वो है इसमें मैक्सिलरी और यू से दैट मैंडिबुलर और इसको सब मैक्सिलरी भी कहते हैं क्योंकि ये लोअर रीजन पे होते हैं, या इसके साथ भी सब नाम ऐड कर दो, सब मैंडिबुलर। दूसरा पैरोटिड, तीसरा लिंगुअल। तो इस तरह से आपके ये 3 स्लाइवरी ग्लैंड्स 3 पेयर के फॉर्म में राइट साइड और लेफ्ट साइड में, तो इस तरह से इसके अंदर ये एंटर कर जाएगा। तो ये आपके जो पहला नंबर वाला पॉइंट्स है जो अपर रीजन से होता हुआ चला गया, तो किस किस ऑर्गन के पास चला गया? तो आई में, सिलियरी मसल्स में, फेशियल रीजन पे, स्लाइवरी ग्लैंड में। और स्लाइवरी ग्लैंड जो होते हैं हमारे पास कौन कौन से स्लाइवरी ग्लैंड है? तो हमारे पास सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी, पैरोटिड एंड लिंगुअल, ये हमारे पास है और इस तरह से इसमें एंटर कर गया। अब देखो जब क्रिटिकल कंडीशन होगा तो स्लाइवा का सिक्रेशन क्या होगा? कम हो जाएगा, तो इसमें स्लाइवा का सिक्रेशन डिक्रीज होता है। फेशियल रीजन में जो उदासी है वो चेहरे पे दिखने लगता है और एक्सप्रेशन फेस का उतना एक्सप्रेटिव पॉइंट में नहीं होता है। सिलियरी मसल्स के जो आइरिस का जो पॉइंट होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं और किसी भी तरह के फंक्शन पॉइंट में डिप्रेशन आने पे या किसी तरह के नॉर्मल फंक्शन में उतने ज़्यादा एक्टिवेट फॉर्म में नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार से कई पॉइंट इस जगह से आप उन पॉइंटों को ऐड करके पढ़ सकते हो, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर लड़ाई या फाइटिंग के दौरान सिलियरी मसल्स एक्टिवेट भी हो सकता है। अब देखो अब यहाँ से जो ये 3 गए थे, जो 3 पॉइंट्स बने थे ऊपर वाला सुपीरियर पॉइंट्स के रूप में, और इधर मैं जो भी नाम लिख रहा हूँ, जो भी डायग्राम दिखा रहा हूँ, वो सब के सब पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के रूप में है। और मैं आपको पहले ही बता चुका था कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं उसमें प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स के जो लेंथ होता है वो कम होता है और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन का जो लेंथ होता है वो अधिक होता है और वो कई ब्रांच में डिवाइड होकर अलग अलग ऑर्गन्स में वो एंटर कर जाते हैं। सेकंड, यहाँ से ये जो यहाँ गया है ये यहाँ से एक ग्रुप बनाएंगे क्योंकि ये जो होते हैं इंटरकनेक्टेड फॉर्म में होते हैं और मिलजुल के काम करते हैं। ये दूसरा और ये तीसरा, और ये सब मिल करके ये आगे बढ़ेंगे और जो हमारे ऑर्गन हैं उसके अंदर चले जाएंगे। तो ये कौन से ऑर्गन में जाएंगे? तो सबसे पहले ये ब्रांच फॉर्म करेगा यहाँ पर और ये जाएगा हार्ट में, यानी हमारे हार्ट के फंक्शंस को एक्टिवेट करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हार्ट के अंदर चले जाएंगे और हार्ट के बाद फिर ये हमारे ट्रैकिया में जो गले के पास है, लैरिंग्स में, ब्रोंकी में, लंग्स में, इन जगहों पे एंटर कर जाएंगे। यानी ये इस तरह से ब्रांच में डिवाइड होगा और डिवाइड होकर इन ऑर्गन्स में चले जाएंगे। अब देखो इसके बाद जो होते हैं ये सभी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ से जो पॉइंट्स हैं ये डायरेक्ट भी यहाँ आएंगे और ये इनके ब्रांच में सर्वाइकल रीजन से तो ग्रो कर ही रहे हैं, जिनका नाम सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन, इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, वो तो काम कर ही रहे हैं। और हार्ट को और इन लंग्स को बहुत सपोर्ट चाहिए क्योंकि वाइटल ऑर्गन है। तो फिर ये क्या करते हैं कि एक एक्स्ट्रा जो 4th नंबर है वो भी सपोर्ट के लिए आ जाते हैं और यहाँ पर सिनेप्स बनता है और सिनेप्स बनने के बाद फिर यहाँ से जो डॉट डॉट दिखा रहा हूँ ये सब के सब पोस्ट गैंग्लियोनिक है और यहाँ सिनेप्स बनने के बाद ये आगे की ओर जा रहे हैं और इसको सपोर्ट कर रहे हैं और इसके साथ मिल कर के
ये सब आगे की ओर मूव कर रहे हैं, इसका उधर मूवमेंट हो गया और इनके साथ भी ये सपोर्ट इनको मिल गया। तो हार्ट को, लंग को, ट्रैकिया को, इनको सबको सपोर्ट करने के फॉर्म में ये सब काम करते हैं। क्लियर है? और यहाँ पर जो आप देख रहे हो, यहाँ पर सिनेप्स बन रहा है, सिनेप्स का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक का सिनेप्स बन गया। अब देखो, अब आगे कुछ कोलैटरल गैंग्लियन बनते हैं, इसके आगे सम कोलैटरल गैंग्लियन आर फॉर्म। कोलैटरल गैंग्लियन जब बनते हैं तो इसमें इसका जो सिनेप्स होता है इस सिंपैथेटिक ट्रंक के अंदर नहीं बनते हैं। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये 5th नंबर से लेकर के 10th नंबर तक, या 5th 6 7 8 9 9 तक ही, 5th से 9th, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5, 5th to 9th there is preganglionic neuron not form synapse in this region, यानी इस जगह पे सिनेप्स नहीं बनाएंगे बल्कि ये आपस में मिल जाएंगे इसके साथ, ये मिल जाएंगे, 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 ये सभी आपस में मिलने के बाद एक पॉइंट में जाकर खुलेगा और जिस पॉइंट में खुलेगा इस पॉइंट से फिर सिनेप्स बनेगा। ये जो कोलैटरल गैंग्लियन है, इसमें ये जो पॉइंट बन रहा है इसका नाम है सीलोइक गैंग्लिया। ये जो गैंग्लिया है ये सीलोइक गैंग्लिया है, सीलोइक गैंग्लिया। और सीलोइक गैंग्लिया कोलैटरल गैंग्लिया का एक पार्ट है। तो कोलैटरल गैंग्लिया इसमें 3 तरह के बनते हैं, सीलोइक गैंग्लिया, सुपीरियर मेजेंट्रिक गैंग्लिया और इन्फीरियर मेजेंट्रिक गैंग्लिया, और इनको बनाने में हेल्प करेंगे। तो सीलोइक गैंग्लियन के फॉर्म में ये यहाँ पर आएंगे और सीलोइक गैंग्लिया से फिर यहाँ से फिर वो जो पोस्ट सिनेप्टिक गैंग्लियंस होते हैं उसका फॉर्म्स होगा। और सीलोइक रीजन आप जानते हो एब्डोमिनल रीजन को बोलते हैं। तो यहाँ से पहले नंबर पे जो ब्रांच है वो जाएगा स्टोमक में, स्टोमक में पेरिस्टोलसिस को ये डीएक्टिवेट कर देगा। तो जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो ये भूख वगैरह कम लगता है। इसके बाद फिर ये अलग से ब्रांच आएंगे, यहाँ से ये डॉट डॉट दिखा रहा हूँ, इसका मतलब है ये पोस्ट सिनेप्टिक गैंग्लियन बता रहा हूँ और ये इस रीजन पे इसका सिनेप्स हो रहा है, इसका सिनेप्स इसके अंदर नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर स्टोमक से आने के बाद फिर ये अलग जो पॉइंट्स है उसके अंदर चले जाएंगे दूसरे पार्ट में। तो ये चले जाएंगे स्टोमक के बाद एब्डोमिनल ब्लड वेसल्स में, एब्डोमिनल ब्लड वेसल्स में। एब्डोमिनल ब्लड वेसल्स में जाने के बाद फिर ये ब्रांच में डिवाइड होगा ऐसे, फिर यहाँ से ओरिजिन होगा और फिर ये जाएगा इंटेस्टाइन में, स्टोमक के नीचे इंटेस्टाइन पार्ट है उसमें। फिर यहाँ से सिनेप्स का फॉर्म होगा, फिर सिनेप्स फॉर्म करने के बाद ये चले जाएंगे लीवर में, बाइल डक्ट में, उसके बाद इसमें लीवर, बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर के पार्ट में, यानी गाइल ब्लैडर बोल दो या गॉल ब्लैडर बोल दो, पित्ताशय की थैली, उसके पास चले जाएंगे। इस तरह के पॉइंट में जाने के बाद फिर ये जो होते हैं कोलोन के रीजन तक जा सकते हैं। तो इसके पार्ट फिर आगे बढ़ेंगे और कोलोन के रीजन तक जा सकते हैं। तो ये रीजन पे चले गए। अब इसके बाद फिर नीचे जो ये 10 नंबर, 10th, 11th और 12th थोरेसिक रीजन है, ये भी आपस में इंटरकनेक्टेड होगा और यहाँ पर सिनेप्स नहीं बनेगा बल्कि ये आगे बढ़ जाएंगे और ये कोलैटरल फॉर्म में जा कर के ये ब्रांच में डिवाइड होगा। और ये जो पहली बार कोलैटरल फॉर्म में यहाँ पर बन रहा है इसका नाम होगा सुपेरियर मैजेंट्रिक गैंग्लियन। तो ये सुपीरियर मैजेंट्रिक गैंग्लियन को फॉर्म करेंगे, इसका नाम होगा सुपीरियर मैजेंट्रिक गैंग्लियन। और ये जो गैंग्लियन होते हैं, ये गैंग्लियन इसमें आने के पहले इसका जो मेन पार्ट होगा
इसका एक पार्ट इसके अंदर एंटर करेगा और एंटर करने के बाद फिर ये इसके पास आएगा, यानी इधर एंटर करने के बाद फिर ये इसके पास आकर एंटर करेगा, तो इसके बाद फिर इसके पास आता है, यानी इसका एक कनेक्टेड पार्ट इससे होता हुआ इसमें आता है, सिलोइड से होता हुआ इस सुपीरियर मेजेंट्रिक गैंग्लियन में एंटर करता है। लेकिन जो 10th नंबर है, अब इसकी खास बात देखो, 10th नंबर ऐसे ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, और 10th नंबर ऐसे ग्रो करके यहाँ से इधर जा रहा है, इसके नीचे नीचे, और यहाँ से ये किसी भी तरीके से डिवाइड नहीं होगा और डायरेक्ट जो होता है एड्रिनल मेडुला में चला जाएगा, एड्रिनल मेडुला में चला जाएगा। और ये एक तरह का एक्सेप्शन कह सकते हो, जो एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला रीजन पे चला जा रहा है, ये एक एक्सेप्शन है। अभी जो भी जा रहे थे वो सिनेप्स बनाने के बाद जा रहे थे, ये 10th वाला यहाँ से ओरिजिन होकर के इसके अंदर जाएंगे, और 10th के अलावा नीचे से और भी नर्व जा रहे हैं जो यहाँ जाने के बाद, जैसे 10th के अलावा इसके नीचे से दिख नहीं रहा हो तो मैं अलग से बना दूँ कि यहाँ आकर एंटर कर रहे हैं और फिर वो इसके पास आ रहे हैं। और ये जो 10th वाला है ये यहाँ से जा कर के डायरेक्ट, यानी यहाँ सिनेप्स नहीं बन रहा है, विदाउट सिनेप्स ये जा रहा है और एड्रिनल मेडुला में जा कर के एंटर हो रहा है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। अब देखो इसके बाद क्या होता है। अब जो है हमारा लंबर बच गया, क्योंकि थोरेसिक तक तो ये कंप्लीट हो ही गया। अब लंबर का जो रीजन है, ये रीजन से भी नर्व अराइज होंगे, और लंबर के रीजन पे भी वही बात है कि ये भी कोलैटरल गैंग्लियन को फॉर्म करने में सपोर्ट करेगा, और या तो 2 या तो 3 तक, 1 2 3, और फिर ये सभी के सभी आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे ऐसे, और ऐसे इंटरकनेक्टेड होने के बाद फिर ये आकर के एक पॉइंट पे खुलेगा और इस तरह से यहाँ सिनेप्स बनेगा। ये जो पॉइंट है इसका नाम होगा इन्फेरियर मेजेंट्रिक गैंग्लियन, इन्फेरियर मेजेंट्रिक गैंग्लियन। और जो इन्फेरियर मेजेंट्रिक गैंग्लियन है, फिर यहाँ से सिनेप्स का फॉर्मेशन होगा और सिनेप्स के फॉर्म में ये आगे बढ़ेंगे, और इस समय इसको सपोर्ट करने के लिए ये जो सुपीरियर मेजेंट्रिक गैंग्लियन है ये भी आ जाते हैं। यानी सुपीरियर मेजेंट्रिक गैंग्लियन, इन्फीरियर मेजेंट्रिक गैंग्लियन, ये सभी आपस में कनेक्टेड होते हैं। और जो यहाँ से ये ओरिजिन हो रहा है, ये लंबर वाले रीजन से, ये अब इसके नीचे वाले हिस्से में जाएंगे। अब ये यहाँ से चला जाएगा, एक तो जैसे कोलोन के पास चला जाता है, मैं दोबारा लिख देता हूँ कोलोन, ठीक है, कोलोन के रीजन में जा सकता है। इसमें जो ब्रांच होगा, क्योंकि इसी ब्रांच को बार बार दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आएगा और फिर ब्रांच में डिवाइड होगा, फिर कोलोन के बाद ये रेक्टम में जा सकता है, रेक्टम के बाद फिर ये किडनी में जा सकता है, किडनी के बाद फिर ये जो होते हैं बॉडी के दूसरे पार्ट, जैसे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, यानी जो भी एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जेनाइटल का मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ जा सकते हैं। इसके बाद फिर ये यूरिनरी ब्लडर में जा सकते हैं, यूरिनरी ब्लडर में जा सकते हैं, फिर ये यहाँ से एनस में जा सकते हैं। तो हमारे बॉडी के कई रीजन पे इसका फंक्शन होता है। तो इस तरह से ये सभी जगहों पे जाते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो डायग्राम है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप एक दिन में याद कर लो, या ये जो है एक दिन में याद भी हो जाएगा, लेकिन है बहुत सिंपल। इसको समझना है, क्या क्या इसमें पॉइंट है पहले एक बार समझ लो, फिर मैं इसको लिख देता हूँ कुछ पॉइंटों को। देखो, ये है वर्टिब्रा के रीजन। वर्टिब्रा के रीजन में आप जानते हो स्पाइनल नर्व पाए जाते हैं। स्पाइनल नर्व 31 पेयर होते हैं, और सर्वाइकल रीजन पे 8, थोरेसिक रीजन पे 12, लंबर रीजन पे 5, सैक्रम रीजन पे 5 और कॉक्सिक्स रीजन पे 1 होते हैं, 31। और ह्यूमन बीइंग में जब 31 पेयर हैं, आपको ह्यूमन बीइंग ही देखना है। इट इज द क्लियर डायग्राम ऑफ द ह्यूमन बीइंग। और इसमें से जो स्पाइनल नर्व होते हैं, उस रीजन से जो भी नर्व इसमें गैंग्लिया अराइज होंगे, वो सिंपैथेटिक के फॉर्म में प्री गैंग्लिया और पोस्ट गैंग्लिया के रूप में होगा। इसके फंक्शन मैं बता चुका हूं।
ये कौन कोलिनर्जिक है, कौन एड्रिनर्जिक है, ये फंक्शन के फॉर्म में आप जानते हो। इसका लेंथ छोटा होगा, उसका लेंथ बड़ा होगा, ये आप एक छोटे से डायग्रामेटिक फॉर्म में देख चुके हो। लेकिन अब मैं इसके हर पॉइंट को डिक्लेयर फॉर्म में कौन कौन से ऑर्गन में जा रहे हैं, इसका क्या रोल है, इसको बता रहा हूँ। अब देखो, इसमें जो नंबर 1 है, T1 से लेकर के ये L2 या L3 रीजन तक ही जाएगा, यानी इसके आगे इसके नर्व अराइज नहीं होंगे, जिसे हम सिंपैथेटिक नर्व कहेंगे। यानी सिंपैथेटिक नर्व गैंग्लिया अराइजेस इन द रीजन ऑफ T1 टू L3। ओके, अब देखो T1 से अराइज होने के बाद जो ये रीजन मैंने बनाया है, ये है सिंपैथेटिक ट्रंक या ऑटोनोमस ट्रंक बोलते हैं, या ऑटोनोमस रीजन बोलते हैं। ये हमारे ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर इस रीजन पे राइट साइड में, फिर यहाँ से निकलकर इस साइड में लेफ्ट साइड में है। यानी दिस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बोथ द साइड, इधर भी होगा इधर भी होगा, दोनों साइड में प्रेजेंट्स होंगे। अब देखो यहाँ से 1 2 3 जो होते हैं प्री गैंग्लियोनिक नर्व अराइज होकर के यहाँ पर गए और यहाँ से सिनेप्स बना और फिर ये ग्रुप में आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद ये इंटर कर गए सर्वाइकल रीजन में। लेकिन सर्वाइकल रीजन में पाए जाने वाले सिंपैथेटिक ट्रंक में, ना कि इसके अंदर, इसलिए इसका नाम रखा गया है सर्वाइकल, क्योंकि ये सर्वाइकल रीजन में पाए जाते हैं, क्योंकि ये एरिया तक फैले होते हैं। और इसमें नाम है सुपेरियर सर्वाइकल गैंग्लिया, मिडिल सर्वाइकल गैंग्लिया एंड इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया। अब देखो सुपेरियर से जो निकल रहे हैं वो जो है पोस्ट सिनेप्टिक गैंग्लियन फॉर्म में, और यहाँ सिनेप्स बन रहा है, सिनेप्स बन करके निकल रहे हैं और ये काफ़ी लंबा होगा, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इसका वाइड स्प्रेड फंक्शन होता है। और ये जो एरिया है, यहाँ पर एक आर्टरी है, इसका नाम है कैरोटिड आर्टरी और प्लेक्सस, यहाँ से होता हुआ ये जा रहा है और सबसे पहले ये रीजन एंटर करेगा आई सिलियरी मसल्स फेशियल रीजन के अंदर। फेशियल रीजन में फेशियल एक्सप्रेशन से लेकर के मस्कुलर फंक्शन में भी ये कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन मेनली पार्टिसिपेट करते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स में। आपके पास 3 पेयर स्लाइवरी ग्लैंड है, इसमें सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, एक ही का 2 नाम है, दूसरा पैरोटिड एंड तीसरा लिंगुअल, इसके अंदर एंटर करेंगे। और आप जानते हो इमरजेंसी सिचुएशन में स्लाइवा का सिक्रेशन कम हो जाता है, तो इसका सिक्रेशन कम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सर इसके बाद फिर ये सुपेरियर, मिडिल और इन्फीरियर रीजन से कॉम्बाइंड फॉर्म में एक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स निकले, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन निकलेंगे और ये हार्ट में, ट्रैकिया में, लैरिंग्स में, ब्रोंकी में, लंग्स में एंटर कर जाएंगे। फिर इसको सपोर्ट करेगा 4th नंबर तक के जो थोरेसिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स है, और ये जाकर के इसके साथ मिल जाएंगे और ये सब मिलजुल करके इन दोनों ऑर्गन को सपोर्ट करेगा। बिकॉज दिस ऑर्गन्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइटल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी एंड व्हेन दे हैव टू नॉर्मलाइज फंक्शन देन वी हैव टू मेंटेन द लाइफ, इसलिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि इसके आगे के जो थोरेसिक रीजन से निकलने वाले प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स है, वो इस सिनेप्टिक ट्रंक के अंदर सिनेप्स का फॉर्म नहीं करेंगे, ये ग्रुप में जुड़ करके आगे निकलेंगे और निकल करके कोलैटरल गैंग्लिया का फॉर्म करेंगे और 3 कोलैटरल गैंग्लिया बनेगा। एक का नाम होगा सिलोइक गैंग्लिया, एक का नाम होगा सुपेरियर मेजेंट्रिक गैंग्लिया और एक का नाम होगा इन्फीरियर मेजेंट्रिक गैंग्लिया। इसमें से 5 से लेकर 9 तक के सारे थोरेसिक पार्ट्स से निकलने वाले, थोरेसिक जो स्पाइनल नर्व है वहां से निकलने वाले प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स आकर के अरेंज होंगे जिस रीजन पे, उसको सिलोइक रीजन बोलते हैं। याद रखना, बड़े आराम से याद हो जाएगा। सिलोइक यानी एब्डोमिनेंट रीजन को बोलते हैं। और इस रीजन में जो भी ऑर्गन्स है उसके नाम लिख लो। स्टोमक है, एब्डोमिनल ब्लड वेसल्स है, इंटेस्टाइन है, इसमें आप पैनक्रियाज के नाम भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पैनक्रियाज भी इस रीजन पे पाए जाते हैं। पैनक्रियाज है, लीवर है, बाइल डक्ट है जिसको गॉल ब्लैडर के फॉर्म में आप कह सकते हो, कोलोन है, तो इस रीजन पे ये चले गए। कोलोन थोड़ा लोअर रीजन पे है लेकिन कोलोन में भी इसका सप्लाई होता है। एक केवल एक्सेप्शन है, 1 एक्सेप्शन, वो है 10th रीजन से जो स्पाइनल नर्व है वहाँ थोरेसिक रीजन से निकल करके ये 10th वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पर डायरेक्ट एंटर करेगा विदाउट सिनेप्सिस, ये डायरेक्ट एंटर कर जाएगा एडिनल ग्लैंड के मेडुला में, एडिनल मेडुला में, बाकी सभी सिनेप्स बनाएगा। फिर ये 11th 12th ये सभी आकर के एक जगह जुड़ेंगे, 10th वाला भी, और ये इसका जो सब्सिडरी पार्ट है ये इसके अंदर में सुपेरियर मेजेंट्रिक गैंग्लियन के रूप में बनेंगे और इसको सपोर्ट करेगा और फिर ये इधर एंटर करेगा, मतलब ये दोनों इंटरकनेक्टेड रूप में होंगे। फिर इसका जो सप्लाई होगा, इसका सप्लाई
हमारे इसके साथ होगा और इन सुपेरियर से इन्फीरियर रीजन पे जाएंगे और इन्फीरियर रीजन पे जाने के बाद फिर ये 1 2 3 इसके साथ मिलेंगे और ये दोनों मिलजुल कर काम करेगा और ये काम करने के दौरान कोलोन में, रेक्टम में, किडनी में, एक्सटर्नल जेनाइटल रीजन पे, यूरिनरी ब्लैडर में, एनस रीजन पे एटसेट्रा रीजन पे ये चले जाएंगे। और यहाँ से आप अगर देखो तो ये एक एक्स्ट्रा एरिया में भी जा सकता है और इसमें एक होता है किडनी, ये किडनी को भी जो है सप्लाई कर सकता है। तो किडनी रीजन पे ये जो होते हैं सिनेप्स को फॉर्म कर सकते हैं सुपीरियर मेजेंटिक गैंग्लियन, तो किडनी में भी ये जनरली सपोर्ट करेगा सिंपैथेटिक न्यूरॉन के रूप में। तो ये इसका कनेक्शन पॉइंट है और इस कनेक्शन पॉइंट को याद रखना। और इधर भी किडनी है जो इसके द्वारा भी सपोर्ट हो रहा है, तो दोनों से सपोर्ट के द्वारा ये बने होते हैं। ओके, कैंस के फॉर्म में बने होंगे और ये भी आपका T1 to L3 रीजन तक होगा। तो T1 to L3 रीजन कंप्लीट, पहला पॉइंट। यानी आपने देखा कि ये T1 जो होता है इस रीजन से इसका ओरिजिन होता है और ये L3 रीजन तक ये जाता है, ये L2 या L3 तक जा सकता है। अब देखो इसमें जो होते हैं 2 टाइप्स के गैंग्लिया होते हैं, एक होते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और ये जानते हो कॉलिनर्जिक होता है, कॉलिनर्जिक बिकॉज इसमें एसिटाइल कॉलिन होता है। और दूसरा होता है इसमें पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, और पोस्ट गैंग्लियोनिक जो न्यूरॉन होते हैं वो एड्रीनर्जिक होते हैं, एड्रीनर्जिक होते हैं क्योंकि इसमें नॉर एड्रेनलिन भरे होते हैं। अगर हम बात करें इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो प्री जो गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ये क्या होगा, छोटा होगा, शॉर्ट इन कंपेरिजन टू किसके कंपेरिजन में, पोस्ट सिनेप्टिक, पोस्ट नॉट सिनेप्टिक गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के रेस्पेक्ट में ये छोटा होगा। तो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन आर शॉर्ट इन कंपेरिजन टू पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, दैट मीन्स पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन आर लॉन्ग, ये लंबा होगा। अब इसमें 3 कोलैटरल गैंग्लियन बनते हैं, ओनली 3 कोलैटरल गैंग्लियंस इसमें पाए जाते हैं प्रेजेंट। 3 कौन कौन से नाम है, तो 3 में पहला नाम देख रहे हो सिलोइक गैंग्लियन, ये सिलोमिक रीजन पे जाता है, तो सिलोइक गैंग्लियन। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा सुपेरियर मैजेंटिक गैंग्लियन, सेकंड इज सुपेरियर मैजेंट्रिक गैंग्लियन। और तीसरा कौन सा होता है, इंफेरियर मैजेंट्रिक गैंग्लियन, इंफेरियर मैजेंट्रिक गैंग्लियन। इस तरह से ये 3 कोलैटरल गैंग्लियन में डिवाइड हो रहे हैं और आपके अलग अलग ऑर्गन्स पे जा रहे हैं। जो भी ऑर्गन्स पे जा रहे हैं इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वाइड स्प्रेड होता है, बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड, यानी इसका डिस्ट्रीब्यूशन वास्ट होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो होता है आप तो पहले ही जानते हो इमरजेंसी सिचुएशन पे वर्क करता है, इमरजेंसी सिचुएशन पे वर्क करेगा। और इनके पॉइंट्स जो होते हैं इनको मैं पहले ही लिखा दिया था कि इमरजेंसी सिचुएशन में सिंपैथेटिक के कुछ ऑर्गन्स क्या वर्क करेंगे, पैरासिम्पैथेटिक के कुछ ऑर्गन क्या वर्क करेंगे। तो ये जो डायग्रामेटिक पॉइंट है इससे ये क्लियर हो रहा है कि कौन से किससे कनेक्टेड होते हैं। इसमें सपोर्ट होता है, इसमें आप देख रहे हो कि अलग अलग ऑर्गन्स में जब ये जाते हैं तो इसका मतलब हमारे इतने सारे ऑर्गन्स का कंट्रोल
उसके फंक्शंस में इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करके उसको एक्टिवेट करना, ये सारे पॉइंट सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के होते हैं और ये गैंग्लियन के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि गैंग्लियन का डेफिनेशन ही होता है कि दोस नर्व बॉडी और न्यूरॉन बॉडी अराइजेस फ्रॉम द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल के पार्ट में इसमें स्पाइनल नर्व होते हैं, तो यहाँ से अराइज होंगे तो ये इस प्रकार से अलग अलग रीजन पे जाएंगे और अलग अलग तरह के फंक्शन करेंगे। और ये किडनी के अलावा कहीं कहीं जैसे किडनी है इंटरकनेक्टेड फंक्शन के फॉर्म में, किडनी से कोलोन को भी सपोर्ट कर सकता है। तो इस तरह से ये जो होते हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड फॉर्म में होते हैं, सपोर्टिंग पॉइंट में होते हैं। जैसे ये आप देख रहे हो इधर से ये सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, तो ये भी काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से इसमें बेसिक जो होते हैं क्वेश्चंस ये बनते हैं। इतना ज़्यादा डिटेल में आपको कभी नहीं आएंगे, ये मैंने आपको समझाया, जानना चाहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चंस के बेसिक के फॉर्म में ये नहीं कि आप पढ़ रहे हो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम रट लिए बस हो गया, इसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। जब मेडिकल में आप जाओगे तो बस एक डॉक्टर बेस्ट बनने के लिए इनके पॉइंटों को समझना पड़ेगा कि भाई कहाँ कहाँ जा रहा है। अभी आप बेसिक चीज़ों को ये पॉइंट में समझ लो, और जब मेडिकल में जाओगे तो हो सकता है डेड बॉडी की डिसेक्शन के समय आपको इन जो स्पाइनल नर्व है, क्रेनियल नर्व है, सेंसरी न्यूरॉन्स है और जो भी इसमें गैंग्लियंस हैं, इनको अलग से डिसेक्ट भी करना पड़े। तो जब ह्यूमन बॉडी को डिसेक्ट करते हैं तो ये सारे पार्ट्स अलग अलग ऑर्गन्स में जाते हुए क्लियर दिखता है। तो आपको ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए और बहुत आसान है, एक बार दो बार आप पढ़ोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को याद भी कर सकते हो, समझ सकते हो। तो अब आपने ये समझ लिया होगा कि सिंपैथिक नर्वस सिस्टम किस प्रकार से अराइज हो रहे हैं और किस किस रीजन पे जा रहे हैं, किस किस ऑर्गन को ये एक्टिवेट कर रहे हैं और इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके।